So, hello everyone. So, in today's class, we are going to discuss specifically this individual topic of yours, food service management, right? And this is one of the most important topic of your UGC NET Home Science uh, Unit 1. And this is very relevant and also very much important for this upcoming examination. So in this class, we will definitely going to discuss some of the specific and individual aspects of this related to this topic, and definitely what kind of questions could be asked, that also we would like to discuss as much as possible. And so please be in the class and try to understand and try to develop the proper concept, right? So in the first of all, you have to know that what exactly the meaning of this individual term, that is food service management. So food service management is nothing but a proper, you can say in a simple manner, it is basically how you someone in case of a manner to try to basically to manage the food. When you have to managing the food from purchase to service efficiently, what are the aspects you have to follow that are included in this individual term, like what exactly is this food service management. So food service management kya hai? This is nothing but the art of providing food and beverages aesthetically and scientifically to the large number of people, right? So definitely how exactly you could utilize this individual management. So management is nothing but how to manage something. सो आप कैसे फूड खरीद मतलब फूड परचेस करने तक, रॉ फूड आइटम को परचेस करने तक, सॉरी करने से आपके सर्विस तक क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, वो फूड सर्विस मैनेजमेंट में आता है. ये जो टॉपिक है, दिस इंडिविजुअल टॉपिक कम्स अंडर यूनिट 1 of home science UGC NET JRF syllabus. So yes, this is very very important. And now, what exactly are the terms like food service management में जो जो आता है, what are the aspects are associated in case of a food service management, वो भी जानना जरूरी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिशनल एंड कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, रिलीजियस प्रैक्टिस, technological development, social and economical changes, and industrial development. So, how exactly is this? These are the associated factor are directly related with food service management. For example, अगर food है, तो food का जो business है, how exactly you can portray in a proper hygienic manner your food and the dishes and the menu. तो वो ग्लोबलाइज्ड हो सकता है. जैसे अब अगर आप देखो तो इंडियन फूड ग्लोबली भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, राइट? नेक्स्ट, ट्रेडिशन एंड कल्चर. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसिडर साउथ इंडिया, देन देयर पीपल यूज टू basically serve their food in banana leaf sometime, right? Which is a tradition or culture. So ये कोई कोई फूड सर्विस जो आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कोई रेस्टोरेंट हो गया, तो वहां पे भी समटाइम्स ये फॉलो होता है. तो अगर आपको कोई कल्चर को दर्शाना होगा, इफ यू आर विलिंग टू पोर्ट्रे और बेसिकली uphold your culture, then you have to follow the trait also. So that is what exactly also followed in case of food service management. Next, technological development. अगर आप देख लो तो right now you are able to order your food by basically staying indoor also. For example, Zomato. Okay, here I am not basically advertising any company. So this is just an basically I am just providing an example. So there are also other digital app by which you can easily Zomato and other also, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक
सेकंड के अंदर ही अगर चाहो तो जो भी आपका मनपसंद खाना होगा वो आप ऑर्डर कर सकते हो एंड घर पे बैठ के ही खा सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर फूड सर्विस मैनेजमेंट लाइक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तो फूड सर्विस मैनेजमेंट के अंदर अगर प्रॉफिटेबल अगर प्रॉफिट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है तो डेफिनेटली वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर टेक्नोलॉजी उसमें एसोसिएटेड होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप देख लो तो नेक्स्ट क्या आएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। यस, अगर आप सोसाइटी में एक प्रॉपर लाइक दिस इज ऑल्सो नीडेड फॉर बिजनेस पर्पस ऑल्सो, आप चाहे तो एक साथ बहुत सारे लोगों को आप काम दिला सकते हो, राइट। सो इकोनॉमिकल चेंजेस भी होगा एंड सोशली दैट इज लाइक दिस बिजनेस इज ऑल्सो फूड सर्विस मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पैक्टफुल सिनेरियो और एस्पेक्ट। इन केस ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, इन केस ऑफ होटल मैनेजमेंट हो गया। तो ये अगर आपको आपका जो भी फूड एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हो आप लोग अगर, तो ये आपका ग्रेजुएशन में या मास्टर में डेफिनेटली आपके सिलेबस में भी आएगा। तो भी ये क्लास अब अगर आप अच्छे से देख लो तो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो यस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी ये फूड सर्विस मैनेजमेंट एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल हाई राइट नाउ इज अ वेरी ट्रेंडी बिजनेस। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ये एसोसिएट रहता है। नेक्स्ट इज रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी कंसिडर करो तो अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब मंदिर के अंदर भी फूड सर्विस मैनेजमेंट चालू रहता है। कोई कैंटीन हो गया, कोई ढाबा हो गया, मंदिर के अंदर भी बहुत सारा ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो वो आपको रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर जो भी मान्यता है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी फूड सर्विस मैनेजमेंट एसोसिएट रहता है। सो दैट इज ऑल्सो बेसिकली एसोसिएट विथ फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो ये थोड़ा बहुत आपका जो भी ये जो टॉपिक है ना फूड सर्विस मैनेजमेंट, इसका एक ओवरव्यू मैंने इस फर्स्ट आपका जो स्लाइड हो गया इसमें मैंने दिया है। तो आई थिंक राइट नाउ you are pretty much know about what exactly is this food service management. That means you are serving the food and how exactly, how aesthetically, basically how is the mannerism, how hygienic is your food, and how exactly the profit, like what exactly, what kind of knowledge, what kind of skill you are basically needed to validate your not only it would be valid as well as it would be very impactful. Right. So that is what exactly related and very much associated with your food service management. So yes, next is about the objective of फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर फूड सर्विस मैनेजमेंट नीडेड है तो क्यों नीडेड है। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इफ यू आर विलिंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड मील, सो इन केस ऑफ दैट फूड सर्विस मैनेजमेंट इज नीडेड। अगर आप एक कैंटीन पकड़ लो, कोई भी एक हॉस्टल का कैंटीन पकड़ लो, तो वहां पे भी वो भी एक फूड सर्विस मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। एंड उधर क्या होता है, फूड सेफ्टी हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, नॉट ओनली इन अ हॉस्टल, इन केस ऑफ अ रेस्टोरेंट, इन केस ऑफ अ ढाबा, in every food FSM or food service management, these are important. In case of hospital, if in case of a hospital, if there is a proper food service management chain, then definitely hygiene is very much important, hygiene and a proper cleanliness, right? So maintain cost control and efficiency. तो आपको कॉस्ट भी कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि लोग चाहे तो खरीद के खा भी सके। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा कॉस्टली फूड बेच रहे हो, आपका हाइजीन अगर होगा भी तब भी अगर कैपेसिटी के अंदर नहीं रहेगा तो चाहे भी तो लोग आपसे खरीद नहीं पाएंगे, राइट। सो मतलब जो भी बेनिफिट अगर नहीं है, बिजनेस छोड़ो आप, अगर अगर जो भी काम आप कर रहे हो उसका जो प्रॉपर जो एजेंडा है वो ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रॉ फूड आप खरीद रहे हो ना, रॉ फूड जो भी आप खरीद रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो भी आप खरीद रहे हो वो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो रॉ फूड जो भी है, रिसोर्सेज जो भी है वो सही से होना चाहिए, तब भी वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
Food service management is the practice business of making, transporting, serving prepared food. Okay, in this case prepared food are served. So for that you have to follow some of the steps also, like specifically 8 stage of food service management. So this 8 stage is important for your coming UGC NET home science examination, WB set, PGT एंड आपका एमपी सेट हो गया, ये सभी के सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपके सिलेबस, आप अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, क्लिनिकल न्यूट्रिशन हो गया, अप्लाइड न्यूट्रिशन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, तो ये अगर टॉपिक आपके सिलेबस में है तब भी आप जान लीजिए 8 स्टेजेस ऑफ फूड सर्विस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या आएगा? यू हैव टू परचेज द फूड, ये सीक्वेंस आप याद रखना, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर परचेसिंग एंड रिसीविंग। तो जो भी फूड आप परचेस कर रहे हो वो आपको जब मिलेगा आप क्या करोगे? स्टोरेज में रखोगे थ्रू प्रिपरेशन। देन यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉपर फॉर्म, इन द प्रॉपर फॉर्म यू हैव टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पोटेटो खरीदा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप बाजार से लाके ही वो मतलब डायरेक्टली खाने में परोस दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो प्रिपेयर्ड चॉपिंग करना पड़ता है, मैशिंग करना पड़ता है। सो दीज आर द प्रिपरेशन बिफोर कुकिंग, राइट? सो वो आपको करना होगा। देन कुकिंग, देन आप कुक करोगे फूड को, एंड उसके बाद आप कूल करोगे वही फूड को, एंड हॉट एंड कोल्ड होल्डिंग्स। तो अगर रखना पड़े फूड को, सो दोनों मतलब मेथड्स है, देयर आर 2 मेथड्स, वन इज हॉट एंड अनदर वन इज कोल्ड होल्डिंग्स। जैसे अगर प्रॉपरली हॉट रखना है फूड को तो उसके लिए एक अलग सा सिस्टम होगा, एंड अगर कोल्ड रखना होगा तो उसके लिए भी अलग सिस्टम होगा। नेक्स्ट, रीहीटिंग। सो बिफोर यू आर सर्विंग द फूड you have to reheat the food item, that is very important, and then you are going to serve the food. तो अगर कोई भी खाना ठंडा हो चुका है एंड वो आपको गर्म खाना मतलब चाहिए, then you have to reheat and then serve the food. Please do consider this point, and uh, from Nutrition Gyan Prabha platform, we would like to inform you that for these upcoming examinations, this topic is very much important, and we expect that these kind of questions like the sequence and the upcoming topics also just stay in the class, so that every topics is for this upcoming examination is kind of important, and possibly from this entire FSM topic, we are expecting that this time question could be asked from this topic, right? So next, types of food service management. This is very important. Food service management, not only management, फूड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 4 तरह का फूड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वो क्या है? फर्स्ट इज योर कन्वेंशनल फूड सर्विस मेथड सिस्टम। सो हियर कुक टू सर्व, ठीक है, शॉर्ट में बोला गया है, वो ही कंसेप्ट है, तो वो भी आप देखिएगा जो ब्रैकेट में बोला गया है। नेक्स्ट इज कॉमिशरी फूड सर्विस सिस्टम, सेंट्रलाइज किचन जिसमें होता है। ओके, नेक्स्ट इज रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम, जिसमें कुक और फ्रीज करके खाना सर्विस किया जाता है। नेक्स्ट, असेंबली और सर्विस सेल्फ सर्विस सिस्टम, और रेडी टू मतलब असेंबल करके आप वहां पे ही फूड को प्रोवाइड बेसिकली सर्व कर रहे हो। सो थॉ सर्विस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टाइप ऑफ फूड सर्विस सिस्टम, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। ओके, पहले देख लीजिए कि कन्वेंशनल मेथड होता क्या है। कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, अगर कंसेप्ट अच्छे से आप सुन के प्रॉपरली क्लास को फॉलो करोगे तो डेवलप हो जाएगा, एंड आप एग्जामिनेशन में जब भी बैठोगे वो भी प्रॉपरली जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो कन्वेंशनल मेथड, सो इन केस ऑफ कन्वेंशनल मेथड मेनली prepared and food are prepared and served immediately. See, what in detail, everything definitely given here, but what exactly I am telling you, what exactly the specific concept, वो आप अच्छे से याद रखिए। क्या मैंने बोला है कि आप in case of
कन्वेंशनल सिस्टम, फूड को पहले प्रिपेयर किया जाएगा एंड देन उसको सर्व किया जाएगा. Yeah, definitely these things has to be like remember for sure. So food is prepared in the kitchen on the premises where the food to be served, following food preparation, production, and then food is held hot or cold and then served as soon as possible. ठीक है. तो जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाएगा वहां अगर डेफिनेटली समटाइम्स द प्रीमाइस इज ऑल्सो द सेम. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मिड डे मील पकड़ लो तो मिड डे मील में क्या होता है. अगर छोड़ो मिड डे मील, फॉर एग्जाम्पल आप एक खुद के घर में ही कोई लाइक पूजा और एनीथिंग यू आर बेसिकली डूइंग एंड वहां पे ही आप खाना भी परोसने का वट एवर द सर्विस फूड सर्विस आप वहां पे ही अरेंज आपने किया है तो क्या होगा. तो सेम प्रीमाइसेस हो जाएगा. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे रेड साइन में बोला गया है आप डेफिनेटली आपका जो खुद का जो नोटबुक है वहां पे आप नोट कर लीजिए. ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, डब्ल्यूबी सेट, एमपी सेट, जो भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, कोई भी पीजीटी का एग्जाम हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एग्जाम्पल्स जो भी होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में examples are very common to be asked, right? So the food may be distributed for food service directly to an adjacent service area, example cafeteria, restaurant, dining halls, hostels. Okay, we just do keep this in mind. Whatever the examples given here, these are important. Okay, hospitals definitely important. ऑलरेडी पूछा जा चुका है. रेस्टोरेंट, वहां पे भी कुक करके आला काटे मेनू डायरेक्टली दे दिया जाता है. ठीक है. डाइनिंग हॉल हो गया, हॉस्टल्स हो गया, तो सेम प्रीमाइसेस एंड द फूड ऑल्सो सर्व्ड ऑन द सेम प्रीमाइसेस ओनली. So that is why the conventional method. Okay. So this system is more adaptable to individual preferences. Seasonal ingredients can be used and greater flexibility also. Menu, in case of a menu, you can consider. Next, commissary food service system. So यहाँ पे centralized kitchen, this term has to keep in mind. Basically जब भी बोला जाए कि centralized kitchen, शायद कॉमिशरी ना बोला जाए तो सेंट्रलाइज्ड अगर किचन बोला जाएगा. ये शायद 2022 और 23 में एक क्वेश्चन मिड डे मील वाला एक पूछा गया है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में. ठीक है. सो द ईयर आई हैव टू चेक वंस, बस यस मिड डे मील का एक आईसीडीएस सेंटर्स का और मिड डे मील का एक एग्जाम्पल देके पूछा गया था कि कौन सा किचन इसमें यूज किया जाता है. ठीक है. तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो वैसे ही जैसे कॉन्सेप्ट मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से अगर जब भी आप वीडियो देख रहे होगे ना तो लिख लीजिए अगर पॉसिबल है. एंड अगर आप चाहे तो बार बार वीडियो को देखिए तब भी आपको याद रह जाएगा. ठीक है. सो इन दिस सिस्टम फूड इज प्रिपेयर्ड सेंट्रली इन वन प्लेस. तो एक प्लेस में ये सेंट्रली कुक्ड होगा, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू the several remote areas also. Okay. So for final preparation and service, since the food production center and the service area location are separate, hence a food distributor are also necessary. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल जो भी आउटलेट, एक बहुत ही कॉमन सा एंड पॉपुलर आउटलेट है केएफसी. तो केएफसी में क्या होता है, सेंट्रल कुकिंग एरिया होता है. ठीक है. तो वहां पे कुक किया जाता है फूड को एंड आपका क्या होता है, जो भी फूड कुक हुआ वो एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके और एक जगह पे ले जाया जाता है. ठीक है. इज इट क्लियर? तो वो आपको याद रखना जरूरी होगा. व्हाट एग्जैक्टली दिस फूड कॉमर्शियल फूड सिस्टम मीन्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सेंट्रलाइज किचन. ठीक है. नेक्स्ट, रेडी टू prepared food service system. So here exactly the most important keyword is basically यहाँ पे क्या होगा, food items are prepared well in advance, पहले से ही prepared होगा before the time of service and kept frozen करके रखा जाएगा until they are to be used. तो जब तक वो
यूटिलाइजेशन के लिए आप कंसिडर ना करो, जब तक टाइम नहीं आए तब तक आप वो फूड को फ्रोज करके रखोगे. One important aspect in this kind of operation is the need for special equipment for freezing the food and separate freezer for storing the food items in the frozen condition, right? So ये important है. This line is very very important कि कहाँ पे ये ready to prepare वाला food system utilize किया जाता है. तो ये होगा आपका स्कूल, रेस्टोरेंट चेन, हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस. तो इसमें क्या होता है, तो फूड आइटम्स को आप अच्छे से फ्रीजर में रख के एंड प्रॉपर केयर में रखते हो, एंड जब आपको कहने को सर्व किया जाने को बोला जाता है तब आप उसको निकाल के सर्व करते हो प्रॉपर जो कुक एंड चिल मेथड है उसमें. अगर हीटिंग जरूरी है तो बिफोर टाइम आप बिफोर सर्विंग यू कैन हीट ऑल्सो. तो कुक फ्रीजर मेथड एंड कुक चिल मेथड. सो यहाँ पे जब आप प्रिपेयर करोगे फूड उसको चिल्ड करोगे इमीडिएटली एंड पैक करोगे प्रॉपर बाल्क में, एंड देन इट विल बी पोर्शनड लेटर. ओके, सो द कुक्ड आइटम विल बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. ओके, सो एंड उसके बाद आप पोर्शन में डिवाइड कर दोगे. सो कुक एंड फ्रीजर मेथड. सो यहाँ पे क्या होगा, सो हियर बेसिकली blast freezer is utilized to store food and prevent cell damage. Okay, so food may be individually packed and stored in bulk, which requires less freezer storage space. ठीक है, तो दोनों अलग मेथड है एंड आपको ये याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, असेंबली फूड सर्विस. इसमें क्या होगा, आपको नाम से ही थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि in this individual method fully prepared foods are purchased. पहले से ही प्रिपेयर्ड होगा उसको ही हम परचेस करेंगे. ठीक है, एंड उसको ही थॉइंग, सीजनिंग, रीहीटिंग जो भी जरूरी प्रोसेसेस है उसमें अप्लाई करेंगे. तो दिस ऑपरेशंस रिक्वायर मिनिमल, बहुत ही कम कुकिंग इसमें लगता है. जैसे आपका गोलगप्पा हो गया, तो ये जो अगर गोलगप्पा हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत पानी आपको लगेगा एंड जो भी बॉइल्ड आलू और जो भी है वो भी आप अगर आप अच्छे से आगे से ही मतलब प्रिपेयर करके रख रहे हो तो क्या करोगे, वो आप इसमें डाल दोगे. ओके, एक एक करके, एंड उसके बाद आप ये पानी पूरी आप खा सकते हो. ठीक है, द सेल ऑफ गोलगप्पा, पानी पूरी और भेल पूरी. So all of these food examples are definitely going to be considered under your assembly food service. So the process is separated from the distribution process service. One of the limitations of this process is that individual system is that the number of items prepared may not be large. तो अगर आप चाहे तो एक ही साथ गोलगप्पा, चाट, भेलपूरी सब कुछ अगर बेचो भी तो ज्यादा नंबर ऑफ पीपल लगेगा, एंड उसमें भी बेसिकली आप चाहे तो ये जो नंबर ऑफ डिशेस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ये स्ट्रीट फूड आइटम में ही आ जाता है. तो वो एक थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो टाइप्स ऑफ कैटरिंग सर्विस है वो क्या क्या है. तो एक होगा वेलफेयर और नॉन कॉमर्शियल मेथड. ऑन द अदर हैंड द अदर वन इज द हॉस्टल्स एंड कॉमर्शियल कैटरिंग. सो नॉन कॉमर्शियल जो होगा उसमें आप कोई प्रॉफिट भी शायद आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल हो गया. कॉमर्शियल होगा तो वो प्रॉफिटेबल हो गया. इधर अगर लिखा नहीं भी है तो आप अलग से लिख लेना. ठीक है, तो इसीलिए मैंने अच्छे से इधर लिख दिया है. वेलफेयर मतलब नॉन प्रॉफिटेबल, कॉमर्शियल मतलब प्रॉफिटेबल. ओके, सो वेलफेयर में क्या क्या आएगा ये टॉपिक अच्छे से आप देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स लिख के मेमोराइज कीजिए. फॉर एग्जांपल, राइट, द मेजर पर्पस ऑफ दिस सर्विस इज बेसिकली फिलैंथ्रोपी एंड सोशल वेलफेयर. राइट, तो इसमें क्या क्या आता है, आर्म फोर्सेस आता है, स्कूल आता है, आपका सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम जो मिड डे मील होता है वो भी आता है जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो खाना दिया जाता है वो भी वेलफेयर बेसिकली नॉन कॉमर्शियल में ही आता है. सो ऑल ऑफ दिस विच आर एसोसिएटेड विद द वेलफेयर ऑफ
some of the individual class. So definitely there is no such profit are associated monetary profit. So those will be considered under welfare or non-commercial services, right? So food to their employees as part of their welfare activities. So sometimes many in industry also some companies also or sometimes provide lunch to their like वर्कर्स. सो ये भी आपने देखा होगा तो वो भी अगर पैसे के बिना दिया जाता है ना तो वो क्या होता है वेलफेयर ही हुआ ना क्योंकि पैसा और कमीशन इधर एसोसिएटेड नहीं है. नेक्स्ट कॉमर्शियल फूड सर्विस. सो कॉमर्शियल अगर आप देख सकती हो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो क्या है डेफिनेटली इधर अगर आप जाओगे एक रेस्टोरेंट में प्रॉपर रेस्टोरेंट सेटिंग में तो आपको पैसे दे के खाना पड़ेगा. तो इधर कोई भी ऐसा वेलफेयर वाला चीज नहीं है. दिस इज फोकस ऑन स्पेसिफिकली ऑन मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड दैट इज व्हाई दिस इज प्रॉफिटेबल, राइट? So this service basically are valuable because they provide for the needs of their consumers as well as source of employment. Also, these services have tremendous economic significance to the country. Hotels and catering services support the tourist travel holiday industry. It is a major earner of foreign exchange since this industry brings money into the country in exchange of for its services, right? So hoteliers, caterers indirectly contribute basically to advancing an understanding between different countries. So ये प्रॉफिटेबल है. कहाँ पे यूटिलाइज होता है, ठीक है, क्यों प्रॉफिटेबल है, ये आपको ये जो तीन चीजें मैंने बोला है लास्ट में ये आप जो भी कंसेप्ट मैंने बोला है उसमें से ही स्पेसिफिकली जो भी एस्पेक्ट है वो की एज अ की पॉइंट यू हैव टू सेपरेट आउट एंड रिमेम्बर, राइट? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट. सो वेलफेयर में क्या क्या आएगा? मिड डे मील, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ठीक है, नाम देखो एंड अच्छे से as well. Definitely I have provided you the proper concepts, so as well as the concept you have to remember the examples in a very careful manner because these questions already this kind of questions have been asked by UGC, right? So ये आने का chances है कमिंग एग्जामिनेशन में, वी कैन अश्योर यू. सो यस, इसीलिए अच्छे से याद रख लीजिए जो भी हम लोग अभी तक हमने डिस्कस किया है ना वो इम्पोर्टेंट है. सो मिड डे मील इन स्कूल एंड ये वेलफेयर में आएगा. स्कूल फूड सर्विस, देन एम्प्लॉयज को अगर खाना दिया जाता है कोई भी इंडस्ट्री में कंपनी में वो भी वेलफेयर में आता है, मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बोला है. नेक्स्ट हॉस्पिटल हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, नर्सिंग होम हो गया, ऑर्फनेज होम हो गया, प्रिजन्स, धर्मशाला, ओके, लार्जर प्रसाद लाइक जहाँ पे दिया जाता है डिवोटीज लोगों को वो भी वेलफेयर, ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर फीडिंग प्रोग्राम. रामकृष्ण मिशन में जो होता है, इस्कॉन के लोगों ने जो चालू किया है ऑलरेडी जो, तो वो भी फ्री में ही होता है फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर. चर्च में जो भी होता है वो भी. तो कॉमर्शियल में आएगा आपका स्मॉल टू लार्ज होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, एक्सटेंसिव लग्जरी रेस्टोरेंट, स्पा, ओके, गेस्ट हाउस, हॉलीडे होम्स, देन फास्ट फूड जॉइंट्स जो भी हुआ, टेक अवे फूड अगर कोई भी क्विक रेस्टोरेंट क्विक सर्विस चालू है वो भी, ओके, कॉफी शॉप, जो भी मतलब कॉमर्शियल होगा वहां पे प्रॉफिट होना मैंडेटरी है. तो ये जो भी है आप लिस्ट वो अच्छे से देख के याद रखिएगा. चेन कैटरिंग, क्लब, जिम, जिम खाना, ओके, सो ऑल ऑफ दिस. सो यस, definitely thank you and try to focus on the topic from first to last. वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है. अगर कोई क्वेरी आप लोगों को लग रहा है कि इसके जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है वहां से अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों को है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो, लेट अस नो थ्रू द कमेंट बॉक्स, ओके. एंड ये इसी से रिलेटेड जो भी PYQs है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है एज वेल एज मॉक टेस्ट वो हम कोर्स क्लास में जरूर से ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, फिर से हम लोग करेंगे. तो ऑलरेडी कोर्सेज चल रहा है जो आप लोग
और आप जो भी देख रहे हो वीडियो, अगर आपको लगता है कि आप जून जुलाई वाला जो एग्जाम है वो देना चाहते हो, और अगर बाद में भी दो तो भी अभी से आपका जो प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो फुल लेंथ कोर्स एनरोलमेंट के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो आपका जो एडुकेटर होगा या अभी जो भी इंडिविजुअल आपको असिस्ट करेंगे वो आपको बता देंगे कि हाउ यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स. So yes, thank you for your like valuable time. Try to individually focus on each and every topic. Okay, अगर कोई भी query है तो do let us know, and definitely we will again meet in the another class. And उसके पहले जो भी हम लोग आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से पढ़िए. So definitely it will going to help you out in the for the coming examination. Thank you.